Sure. Assalamu alaikum everyone. Today we all are gathered here to perform new program. The speaker of this program is Muhammad Suhail. He's manager regulatory affairs. Okay, and this program basically conducted by under Emerging Farmer Leaders Program and organized by GMP Compliance Academy. And GMP Compliance Academy introduced this program just because to facilitate new speakers to come and spread their vision and perform their duties in pharma sectors. Now I would like to call Mr. Suhail. He is a speaker of this program. Please, Mr. Suhail, kindly start your presentation. The topic he is used, which is medical devices, rules of medical devices 2017 Pakistan. And now I'm over to give you Mr. Suhail. Please start your presentation. Bismillahirrahmanirrahim. I'm thankful to GMP Compliance Academy for providing me this opportunity to share my thoughts on medical device rules 2017. Before starting my presentation, I would like to introduce myself. My name is Muhammad Suhail. I am Doctor of Pharmacy by profession and handling medical device regulations in Pakistan since its birth in Pakistan. Along with this, I am associated with the Asian Harmonization Working Party in the capacity of secondary representative. And the Asian Harmonization Working Party is responsible for the harmonization of medical device regulations in Asia. Along with this, my belongings are with APEC Med. APEC Med is Asia Pacific Medical Technology Association, that is the representative body of medical device industry and its association in Asia. My today's presentation flow will be based on these points. At the start, we will discuss about the medical device industry. Then we will have a look at the history of the medical device regulations. In the next step, we will discuss about the medical device and its types. And lastly, we will discuss that what are the procedure or what are the requirements of medical device rules 2017. So let's start with an overview of the medical device industry. इंडस्ट्री को जानने से पहले मैं आपको क्लैरिफाई करता जाऊं कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मेडिकल डिवाइसेस कहलाती हैं या मेडिकल डिवाइस की डेफिनेशन क्या है. जो ग्लोबली मेडिकल डिवाइस को डिफाइन किया गया है एज पर ग्लोबल हार्मोनाइजेशन टास्क फोर्स, जिसे इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर फोरम्स भी कहते हैं, और WHO की जो डेफिनेशन है वो एक लेंथी है. उसको सम अप करके एक समरी आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा. मेडिकल डिवाइस मीन एनी इंस्ट्रूमेंट, इम्प्लीमेंट, ऑपरेटर्स, मशीन, सॉफ्टवेयर या इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स जो के डिजीज की डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन या प्रिवेंशन के लिए यूज की जाती है, या कोई भी ऐसी चीज जो कंट्रोल ऑफ कंसेप्शन या स्टीरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस के लिए यूज की जाती हो और वो अपना जो बेसिक पर्पज है उसे फार्माकोलॉजिकल, मेटाबोलॉजिकल या इम्यूनोलॉजिकल मीन से हासिल ना करें. हाँ, ये हो सकता है कि कोई भी चीज अगर आप यूज कर रहे हैं और वो अपना पर्पज अचीव कर रही है, लेकिन जो सेकेंडरी मीन्स हैं वो फार्माकोलॉजिकल, मेटाबोलॉजिकल या इम्यूनोलॉजिकल मीन्स हो सकते हैं, बट प्राइमरी मीन्स नहीं होने चाहिए कि जब कोई भी ऑपरेटर्स जो ह्यूमन या एनिमल बॉडी के ऊपर यूज किया जाए तो वो अपना ऑब्जेक्टिव इन 3 मीन से हासिल ना करे, तो उसको हम मेडिकल डिवाइस कहेंगे. जहां तक मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री का ताल्लुक है पाकिस्तान में, तो करंटली जो पाकिस्तान की मेडिकल डिवाइसेस है इट्स वर्थ $752 मिलियन. और जहां तक मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री प्योरली रिलेटेड टू पाकिस्तान, वी आर डोमिनेटेड इन, वी आर स्किलफुल इन मैन्युफैक्चरिंग द डोमेस्टिक स्टील सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स. जैसे कि मैंने बताया कि स्टील सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी मेडिकल डिवाइस की कैटेगरी में ही फॉल करते हैं.
as per draft definition and as per medical device rules 2017. जहाँ तक स्टील सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग का ताल्लुक है, तो सियालकोट इज द बेसिक हब जहाँ सबसे ज्यादा इंडस्ट्री इस वक्त लोकेटेड है। और सियालकोट की अगर हम सर्जिकल इंडस्ट्री की बात करें तो इट डेट बैक्स टू मुगल एम्पायर पीरियड। स्टार्ट में वहाँ कुछ मेटल प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मेटल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज थी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं होते थे। बट वहाँ अमेरिकन मिशन हॉस्पिटल, जिससे कुछ नीड पड़ी कि वो अपने सीजर्स और बाकी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें लोकल जो मेटल इंडस्ट्री उससे रिपेयर करवाएं। तो उस इक्विपमेंट को रिपेयर किया उस लोकल इंडस्ट्री ने सक्सेसफुली, और साथ साथ उसको रेप्लिकेट करना स्टार्ट किया। वो रेप्लिकेशन इतनी सक्सेसफुल थी कि उसने सियालकोट के अंदर जो सर्जिकल इंडस्ट्री थी उसकी बुनियाद डाली। फिर 1930 में जो सियालकोट की सर्जिकल इंडस्ट्री थी उसने एक्सपोर्ट स्टार्ट की टुवर्ड्स इजिप्ट एंड अफगानिस्तान। इसी तरह 1941 में मेटल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट सेंटर का क्याम आया ताकि वहाँ की जो मेटल इंडस्ट्रीज है उसको ग्रो करवाया जा सके। अब करंट अगर हम पिक्चर देखें जो सियालकोट की स्टील सर्जिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, तो दे आर द लीडिंग एक्सपोर्टर्स and the export accounts about $250 million US, और most तकरीबन 140 countries across the world जहां सियालकोट की सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो इंडस्ट्री है वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को वहां एक्सपोर्ट कर रही है। अगर आप पाकिस्तान की स्टील सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की एक्सपोर्ट को देखें तो आपको आइडिया होगा कि पाकिस्तान के जो स्टील सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लीडिंग कंट्रीज जैसे यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज, जर्मनी, यूके, इटली, फ्रांस, इन लीडिंग ममालिक में हमारी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की एक्सपोर्ट है। और अगर आप फिगर्स को मजीद एलैबोरेट करके देखें तो आपको आइडिया होगा कि वो कंट्रीज जो पाकिस्तान से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की इंपोर्ट कर रहे हैं, दे आर आल्सो द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अभी करंटली जो हमारा मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री का सेक्टर पाकिस्तान में है, वी आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन मैन्युफैक्चरिंग स्टील सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और जो हमारी इंपोर्ट की मार्केट है जिसमें वो 90% से ज़्यादा है, वो फ्लडेड है जो एडवांस्ड मेडिकल डिवाइसेस होती हैं। एडवांस्ड मेडिकल डिवाइसेस अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 1% ऐसे इक्विपमेंट हैं जो कि एडवांस्ड मेडिकल डिवाइसेस कैटेगरी में फॉल करते हैं और यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं। अदरवाइज अगर हम बाकी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो उसमें 97% ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं और 2% सिर्फ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो कि डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो कि डेंटल सर्जरी में इस्तेमाल किए जाते हैं। जो सियालकोट की सर्जिकल इंडस्ट्री है उसमें तकरीबन 3500 से ज़्यादा इस वक्त कंपनीज हैं जो कि अपना बिजनेस कर रही हैं। और हमारी जितनी भी सर्जिकल इक्विपमेंट्स जहाँ सियालकोट में प्रोड्यूस होते हैं, दे आर वर्ल्ड रिनाउंड। नेक्स्ट अगर हम ओवरऑल सर्जिकल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो जो वर्ल्ड मार्केट शेयर है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, ये तकरीबन 30 बिलियन के करीब है, 30 बिलियन US के करीब है। और जो पाकिस्तान का शेयर है इस वर्ल्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की मार्केट में वो सिर्फ 250 मिलियन US है। तो अगर हम गैप देखें तो हमारे पास यहाँ एक लीडिंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। अगर हम जो हमारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं उसे एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाएं तो हम इस गैप को एज एन अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं और हमारी जितनी भी सर्जिकल की इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ बनते हैं उसको हम इससे भी ज़्यादा मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स पाकिस्तान में बनते हैं वो दो कैटेगरीज के हैं। उनमें से 80% ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो डिस्पोजेबल्स हैं। डिस्पोजेबल्स मीन्स कि आपने उन्हें एक दफ़ा यूज़ करना है और उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जो 20% इक्विपमेंट्स हैं जो सर्जिकल के, वो रीयूजेबल हैं। अगर यहाँ भी हम रेशो देखें तो मेजर जंक उन इंस्ट्रूमेंट्स के हैं जो कि डिस्पोजेबल्स हैं, जिन्होंने एक दफ़ा इस्तेमाल होना है और दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो हमारे पास यहाँ भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम इस सेगमेंट के ऊपर फोकस करें सर्जिकल इंडस्ट्री के ऊपर तो पाकिस्तान इसमें ग्रो कर सकता है।
और करंट जो हमारा एक्सपोर्ट मार्जिन है इसको भी हम बढ़ा सकते हैं और पाकिस्तान के लिए एक अच्छा ज़र मुबादला कमा सकते हैं। जहां तक टॉप 10 इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं जो कि पाकिस्तान से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को इंपोर्ट करते हैं, उनमें यूएसए, जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली, यूएई, जापान, ब्राजील, मैक्सिको एंड रशियन फेडरेशन हैं। You will be surprised to know that these are the leading countries in the world. They are renowned. और अगर हम इन कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो हम अपनी इंडस्ट्रीज को मजीद बेहतर करके और ममालिक के अंदर भी अपनी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और पाकिस्तान की फाइनेंशियल पोजीशन इस सेक्टर में हम बेहतर कर सकते हैं। जो करंटली अभी हमारी एक्सपोर्ट आपने देखी कि जस्ट 250 मिलियन यूएस डॉलर है, तो उसमें अभी करंटली जो हमें चैलेंजेस का सामना है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो लैक ऑफ अडॉप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी है। अगर हम अपने कंपटीशन को देखें तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में हमारा कंपटीशन जिसे हम कंपटीशन समझते हैं वो सिर्फ जर्मनी है। आलू हम उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो करंट अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें जो स्टील यूज हो रहा है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, जिसकी वजह से हम उसे जस्ट कंसिडर करते हैं कि वो हमारा कंपटीटर है। तो अभी करंटली जो सियालकोट की इंडस्ट्री है वो इज बीइंग लुकिंग आफ्टर बाय थर्ड जनरेशन, लेकिन उनकी जो टेक्नोलॉजी है वही पुरानी है। अगर वो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें तो हम इस सेक्टर में ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा करंटली हमारे मुल्क में सर्जिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट या उससे रिलेटेड कोई फंड एलोकेशन नहीं है, जिसकी वजह से सर्जिकल इंडस्ट्री उस तरह फ्लरिश नहीं कर पा रही जिस तरह उसे करना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सर्जिकल इंडस्ट्री, अगर हम वर्ल्ड सर्जिकल इंडस्ट्री की मार्केट की पिक्चर भी देखें तो वहाँ एक मार्जिन अवेलेबल है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं और अपनी पोजीशन को करंट पोजीशन से बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो अगर वहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर पाकिस्तान में क्रिएट किया जाए और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर वर्किंग की जाए तो हम अपनी इस इक्विपमेंट्स की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। जब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इट्स लिंक्ड विद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, क्योंकि जो लोग उस इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करेंगे जब उन्हें अवेयरनेस होगी तो देन ही वो टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट कर सकेंगे। इसीलिए टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ साथ हमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करना है, ताकि जो आज दुनिया की रिक्वायरमेंट है लेटेस्ट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, उसको हम मीट कर सकें। जो हमें करंट जो कंपटीशन फेस है वो चाइना एंड मैक्सिको का है। वो इस वजह से है क्योंकि उनकी लेबर चीप है, उनकी सुपीरियर। सो दीज आर अमंग द चैलेंजेस कि जो कि हाईलाइट किए गए हैं कि अगर हम इनके ऊपर फोकस करें तो हम अपनी सर्जिकल इंडस्ट्रीज को मजीद बेहतर कर सकते हैं और आने वाले दिनों में हमारी ये सर्जिकल इंडस्ट्री मजीद ग्रो कर सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि हमारी मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री में जो टोटल डिपेंडेंस है वो है ही सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। तो अगर हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ग्रो करना चाहते हैं तो हमें इन फैक्टर्स के ऊपर काम करना होगा ताकि हम अपनी इस इंडस्ट्री को ग्रो करवा सकें। अगर हम मेडिकल डिवाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इज द पार्ट ऑफ मेडिकल डिवाइस। अगर हम ग्लोबली मेडिकल डिवाइस मार्केट का ओवरव्यू देखें तो जो 2018 के अंदर मेडिकल डिवाइस की मार्केट थी वो 426 मिलियन यूएस डॉलर की थी और जो 2025 के लिए जो प्रोजेक्टेड मार्केट है ये 613 बिलियन यूएस डॉलर है। ए ह्यूज मार्केट एंड ह्यूज अपॉर्चुनिटी लाइज हियर कि अगर हम अपनी मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री को ग्रो करवाना चाहते हैं, उसके ऊपर फोकस करें तो हम इसमें मजीद बेहतरी ला सकते हैं। स्टार्ट में जस्ट हम सर्जिकल इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे थे, लेकिन जो करंट सर्कमस्टांसिस और कोविड-19 की सिचुएशन है इसने हमें फोर्स किया है कि हम रीथिंक करें अपनी इंडस्ट्री को एंड स्पेशली मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री को, और हम एक्सप्लोर करें कि यहाँ और क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं जिसको हम फोकस करके या जिसे ग्रो करवा के हम पाकिस्तान की पोजीशन इस सेक्टर में बेहतर कर सकते हैं। करंटली आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि फेस मास्क, जैसे कि
स्टंट्स जैसे कि वेंटिलेटर्स, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि मेडिकल डिवाइस के अंदर कैटेगराइज की जाती हैं। अगर हम ग्लोबल मार्केट को देखें तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है और इसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हम मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्रीज में जो टॉप प्लेयर्स हैं उनकी बात करें तो यहाँ से भी आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है कि जो पाकिस्तान बेस्ड हो। द मोस्ट लीडिंग कंपनी इज मेट्रॉनिक, देन जॉनसन एंड जॉनसन, नंबर 3 पोजीशन पे थर्मो फिशर, 4th पे एबर्ट, 5th पे जीई, फिलिप्स एंड सिमिलरली इट गोज डाउन एंड केम फ्रीजीनियस मेडिकल केयर आल्सो। अगर हम अपनी मेडिकल डिवाइसेज इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करें तो हम अपनी जगह इसमें बना सकते हैं। इन इंडस्ट्रीज को भी देख के जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया है कि हमारी 90% जो मेडिकल डिवाइस की मार्केट है वो फ्लडेड बाय इंपोर्ट, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं उनमें से मोस्टली पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, और यही वजह है कि दे आर जस्ट वी आर जस्ट इम्पोर्टिंग देयर प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान। अगर हम इन कंपनीज के सेटअप यहाँ हों तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी कम होगी, और जो पेशेंट के ऊपर जो ट्रीटमेंट का बर्डन है या कंट्री के ऊपर जो ट्रीटमेंट का बर्डन है वो काफी हद तक कम किया जा सकता है। अगर हम, जैसे मैंने आपको कहा कि हम मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करके इसे ग्रो कर सकते हैं, तो उसमें से जो चंद हाईलाइटेड सेगमेंट हैं जो कि स्टडी ये रिकमेंड करती है कि अगर हम इन सेगमेंट्स के ऊपर काम करें तो हम मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री को ग्रो कर सकते हैं। उनमें से जो सबसे ज्यादा लीडिंग रिक्वायरमेंट्स हैं मेडिकल डिवाइसेस की वो रेस्पिरेटरी सेगमेंट्स ही हैं, देन मॉनिटर्स, उसके बाद वेंटिलेटर्स जो कि फॉर्चुनेटली भी करंटली पाकिस्तान में हमने बनाना इसमें काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा डेंटल वेटनरी इंस्ट्रूमेंट्स एंड अप्लायंसेस, आर्थोपेडिक अप्लायंसेस, रेडियोग्राफी, एक्सरे मशीन्स, डायलिसिस मशीन्स और हेल्थ आईटी से रिलेटेड कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे हैं कि जिनके ऊपर अगर हम काम करें, इसमें दोनों साइड से हम देख सकते हैं। अगर हम इन सेगमेंट्स के ऊपर काम करें और उनके प्लांट्स लोकली डेवलप करें तो वो भी कंट्री के लिए बेनिफिशियल हैं। और अगर कोई ऐसी कंट्रीज हैं जो कि आउटसाइड द पाकिस्तान बिजनेस करती हैं एंड दे वांट टू डू और एस्टेब्लिश देयर बिजनेस इन पाकिस्तान, तो ये वो सेगमेंट हैं जिनके ऊपर वो फोकस करके अपने बिजनेस को पाकिस्तान में ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे हेल्थ आईटी इज वन ऑफ द सेगमेंट, क्योंकि जैसे मैंने आपको अपनी डेफिनेशन में बताया मेडिकल डिवाइस में, इवन सॉफ्टवेयर इज आल्सो नोन एज मेडिकल डिवाइसेस, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर वो डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन या प्रिवेंशन ऑफ डिजीज में हेल्प कर रहा है तो वो मेडिकल डिवाइस कहलाएगी, और उसकी रजिस्ट्रेशन और उसके लिए भी वो तमाम रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल होंगी जो कि मेडिकल डिवाइस रूल्स 2017 के अंदर मेंशन है। तो ये वो लीडिंग एरियाज हैं जिनके ऊपर हम फोकस करके अपनी मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री को ग्रो करवा सकते हैं। अब जहां तक मेडिकल डिवाइस रेगुलेशंस का ताल्लुक है, तो जो रेगुलेशंस होती है वो किसी भी कंट्री में वो लिंक्ड होती है किसी न किसी ट्रेजेडी से। सिमिलरली अगर हम वर्ल्ड वाइड भी देखें तो ऐसा ही हुआ है, कोई ना कोई ट्रेजेडी होती है जिसके बाद रेगुलेशंस डेवलप की जाती हैं। वी आर फोर्स्ड टू डू we are forced to regularize the industry. Similarly हमारे कंट्रीज में भी HIV, एड्स, हेपेटाइटिस के केसेस बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहे थे, जिसके बाद इस इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया गया। और किसी भी कंट्री के फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए उसकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हेल्थ एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड द हेल्थ ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट मेक रेगुलेशंस। ये ऐसा नहीं है कि किसी भी इंडस्ट्री की ग्रोथ को रोकना इसका पर्पस होता है, या किसी भी बिजनेस को रोकना या हर्ट करना रेगुलेशंस का पर्पस होता है। रेगुलेशंस आर ऑलवेज देयर टू फैसिलिटेट द इंडस्ट्री। सिमिलरली पाकिस्तान में जो मेडिकल डिवाइस की रेगुलेशंस हैं उसका अगर हम तज़किरा करें बिफोर 2009, तो कुछ ऐसी चीजें थी जिनको मेडिकल डिवाइस डिक्लेयर किया गया अंडर ड्रग एक्ट 1976, जैसे कि सुचर्स, और फिर उन्हें रजिस्टर्ड करना शुरू किया गया।
उसके बाद 2010 में थ्रू एन SRO कैनुला, कैथीटर, स्टंट, सिरिंजेस और IV सेट इन्हें मेडिकल डिवाइस डिक्लेयर किया गया और इनकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस थ्रू ड्रग एक्ट स्टार्ट किया गया। 2012 में जब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान का क्या अमल में आया तो उसमें एक डिवीजन डिफाइन किया गया जिसको कहते हैं मेडिकल डिवाइस एंड मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स डिवीजन। DRAP has its 13 division and among of them is the medical device and medicated cosmetics division that is responsible for looking after the matters of medical devices and medicated cosmetics products. जब 2012 में ड्रैप एक्ट को नोटिफाई किया गया उसमें मेडिकल डिवाइसेस एंड मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स का डिवीजन बनाया गया, तो उसके बाद मेडिकल डिवाइसेस के रेगुलेशंस के ऊपर काम स्टार्ट किया गया। 2013 से 2014 के दरमियान जो मेडिकल डिवाइसेस रूल्स हैं उनके ऊपर काम किया गया, उनकी ड्राफ्टिंग की गई और डिफरेंट जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस थी, WHO की जो गाइडलाइंस थी, जो रेफरेंस कंट्रीज से हमारे नियर बाय में, उनकी रूल्स को लेके फिर एक रूल्स बनाए गए ताकि उन्हें कंट्री की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अडॉप्ट किया जा सके। 2015 में फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान मेडिकल डिवाइसेस रूल्स वर नोटिफाइड, ताकि जो मेडिकल डिवाइस की इंडस्ट्री है उसको रेगुलेट किया जाए और उनकी जो प्रोडक्ट्स और जो कंपनीज इनको बना रही हैं उसको रेगुलेट किया जाए। 2015 के रूल्स अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ द कंफर्मेटरी असेसमेंट बॉडीज दे वर नॉट गॉट इम्प्लीमेंटेड। 2015 के बाद फिर 16 जनवरी 2018 में इन रूल्स को अगेन इनमें अमेंडमेंट्स की गई और न्यू रूल्स नोटिफाई किए गए जिसे कहते हैं मेडिकल डिवाइस रूल्स 2017। इंटरनेशनली भी अगर हम देखें तो इस वक्त यूरोपियन कंट्रीज के अंदर MDR 2017 इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहा है। सिमिलरली जो पाकिस्तान में रूल्स हैं जो 2018 में नोटिफाई हुए उसे मेडिकल डिवाइस रूल्स 2017 कहते हैं और करंट सिनेरियो में मेडिकल डिवाइस रूल्स 2017 आर एप्लीकेबल एंड दे आर इम्प्लीमेंटेड। अभी जैसे कि मैंने आपको मेडिकल डिवाइसेस का बताया, तो डिपेंडिंग अपॉन द यूज ऑफ द एनर्जी मेडिकल डिवाइसेस आर कैटेगराइज्ड एज एक्टिव मेडिकल डिवाइसेस, नॉन एक्टिव मेडिकल डिवाइसेस एंड इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स। मेडिकल डिवाइसेस को 4 कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है। ये जो क्लासिफिकेशन है इट डिपेंड्स अपॉन द रिस्क ऑफ द मेडिकल डिवाइसेस। और रिस्क कौन सा रिस्क दैट इट पोजेस टू द यूजर एज वेल एज टू द पेशेंट। अगर लो रिस्क मेडिकल डिवाइस होगी तो उसे क्लास A मेडिकल डिवाइस कहा जाएगा और क्लास D जो मेडिकल डिवाइसेस हैं वो हाई रिस्क मेडिकल डिवाइस कहलाती हैं। इसी तरह जो क्लास B मेडिकल डिवाइसेस हैं उनका रिस्क फैक्टर क्लास C मेडिकल डिवाइसेस से कम है। इसी तरह जो क्लास C मेडिकल डिवाइसेस हैं उसका रिस्क फैक्टर क्लास D मेडिकल डिवाइसेस से कम। अगर हम एनर्जी की बेस के ऊपर इसे क्लासिफाई करना चाहें कि अगर किसी भी टाइप की को एनर्जी को इक्विपमेंट यूज कर रहा है तो उसे एक्टिव मेडिकल डिवाइसेस कहा जाएगा। जैसा कि मशीन्स होती हैं, हीमोडायलिसिस मशीन्स हैं जो कि ब्लड की प्यूरिफिकेशन के लिए यूज की जा रही हैं, वो उनको अपना फंक्शन ऑपरेट करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है तो इसे एक्टिव मेडिकल डिवाइसेस कहा जाएगा। इसी तरह कुछ ऐसी मेडिकल डिवाइसेस हैं जिन्हें एनर्जी की जरूरत नहीं होती, जैसे कि डायलाइजर्स हैं, उन्हें अपना फंक्शन ऑपरेट करने के लिए डायरेक्टली तौर के ऊपर एनर्जी की जरूरत नहीं होती। इसी तरह अगर हम MRI मशीन को देखें वो भी एक मेडिकल डिवाइसेस है, उसे एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए उसे एक्टिव मेडिकल डिवाइसेस कहा जाएगा। इसी तरह जो टंग इंप्रेसर है इट्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिकल डिवाइसेस और ये नॉन एक्टिव मेडिकल डिवाइसेस कहलाएगा। Another type of medical devices is in vitro diagnostics. In vitro diagnostics वो होती हैं कि जो हम बॉडी से सैंपल लेते हैं और उसे इन विट्रो हम आउटसाइड द बॉडी एनालाइज करते हैं कि अगर इसके किसी भी सैम्पलिंग के लिए उसको हम यूज करते हैं तो वो भी मेडिकल डिवाइसेस ही कैटेगराइज की जाती हैं। मेडिकल डिवाइसेस को उनके रिस्क बेस के ऊपर क्लासिफाई किया जाता है और
उसी तरह उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। अगर हम मेडिकल डिवाइसेस रूल्स की बात करें जो कि जनवरी 2018 में नोटिफाई हुए थे, at the time of its notification there were some exemption period that was notified by the authority. उस एग्जाम्पशन पीरियड के तहत कोई भी इंपोर्टर या मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट्स जो कि मेडिकल डिवाइस का बिजनेस कर रही है, उसे 6 मंथ्स का टेन्योर पीरियड दिया गया था कि उस वक्त तक उसने अपने आप को कंप्लाइंट करना है इन अकॉर्डेंस विद मेडिकल डिवाइस रूल्स 2017। सिमिलरली अगर कोई ऐसी कंपनी है जो क्लास डी मेडिकल डिवाइसेस को प्रोड्यूस कर रही है तो उसके लिए जो एग्जाम्पशन पीरियड डिफाइन था वो 9 मंथ्स था, और जो क्लास सी मेडिकल डिवाइसेस हैं उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए जो एग्जाम्पशन पीरियड था वो 12 मंथ्स का नोटिफाई किया गया था। क्लास बी मेडिकल डिवाइसेस हैं उसके लिए 18 मंथ्स का एग्जाम्पशन पीरियड था, और क्लास ए मेडिकल डिवाइसेस के लिए 24 मंथ्स का एग्जाम्पशन पीरियड नोटिफाई किया गया था। ये वो तमाम एग्जाम्पशन पीरियड्स हैं जो एट द टाइम ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस रूल्स 2017 वर नोटिफाइड, एंड करंटली ये तमाम एग्जाम्पशन पीरियड्स जो हैं एक्सपायर हो चुके हैं और मेडिकल डिवाइसेस रूल्स आर इन फोर्स। सो कोई भी कंपनी जो आज फॉर एग्जांपल अगर कोई भी इंपोर्टर या मैन्युफैक्चरर वो ये डिसाइड करे कि हमने पाकिस्तान में मेडिकल डिवाइस का बिजनेस करना है, so they should be registered with the authority and they should got establishment license from the authority at the initial stage. उसके बाद जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी तो आपने जो प्रोडक्ट्स हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर क्लासिफिकेशन कि वो क्लास डी में फॉल कर रही है, सी में फॉल कर रही है, बी में फॉल कर रही है या ए में फॉल कर रही है, आपने उस प्रोडक्ट को फिर अथॉरिटी से रजिस्टर करवाना है। तो इनिशियल स्टेप में कंपनी रजिस्ट्रेशन है, देन उसके बाद जो आपकी प्रोडक्ट जो आप बिजनेस करना चाहते हैं, जो यहाँ मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं या इंपोर्ट करना चाहते हैं, उसको आपने पाकिस्तान में पहले ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर करवाना है। उसके बाद आप उसकी इंपोर्ट कर सकते हैं या उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमंग द अदर डिवीजन्स ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, the one of the division who is responsible for the implementation of the medical devices rules and its associated procedure is known as the medical device and medicated cosmetics division. जो इसके मेजर फंक्शन है उसमें जो प्रोसेस एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस एप्लीकेशन, कोई भी इंडस्ट्री जो आइदर के वो लोकल मैन्युफैक्चरर है या फॉरेन इंपोर्टर है, उसको मेडिकल डिवाइस का बिजनेस करने के लिए सबसे पहले ड्रैब से लाइसेंस लेना होगा। उसके बाद द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द MDMC इज टू प्रोसेस डिवाइस रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। जितनी भी मेडिकल डिवाइसेस यहाँ लोकली प्रोड्यूस होंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिकल डिवाइस इज द टंग डिप्रेसर एंड द मोस्ट कम्प्लेक्स इज द MRI। सो आइदर हम डायलिसिस मशीन इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, अगर आइदर हम वेंटिलेटर्स इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, आइदर हम सिरिंजेस यहाँ बनाना चाह रहे हैं, आइदर हम स्टंट यहाँ बनाना चाह रहे हैं, आइदर हम फेस मास्क यहाँ बनाना चाह रहे हैं, या कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जो डिजीज की प्रिवेंशन के लिए यूज होगा, तो उसको हमें अथॉरिटी से रजिस्टर करवाना है। The third and the most important is the monitoring of the safety record. जब कंपनी और प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हो जाती हैं तो उसके बाद प्रोडक्ट को मार्केट किया जाता है। जब प्रोडक्ट मार्केट हो जाती है तो फिर उसकी सेफ्टी को मद्देनजर रखा जाता है कि कहीं वो पॉपुलेशंस के अंदर कोई ADR रिपोर्ट तो नहीं कर रही, कहीं वो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है या नहीं है, उसको मॉनिटर किया जाता है। तो इसमें पोस्ट मार्केट सर्विलेंस एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं कि जब आपकी प्रोडक्ट मार्केट में आ जाती हैं तो उसकी ADR रिपोर्टिंग और उसकी इवैल्यूएशन, फिर उसके बाद देखा जाता है कि इस प्रोडक्ट में जो ये प्रॉब्लम क्रिएट करी है, आइदर के मैन्युफैक्चरर को इसका कोई करेक्टिव या प्रिवेंटिव एक्शन लेना है या उसको फील्ड सेफ्टी नोटिस भेजना है। उसकी बेस के ऊपर फिर अथॉरिटी ये डिसाइड करती है कि आइदर इस प्रोडक्ट को विदड्रॉ या रिकॉल करना है या नहीं। इट्स द शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ मैन्युफैक्चरर एंड द अथॉरिटी। कोई भी यूजर भी कोई भी अगर मेडिकल डिवाइस यूज कर रहा है
और उसके अगर ADR रिपोर्ट्स हो रहे हैं या उसकी परफॉर्मेंस एज पर स्टैंडर्ड नहीं है, या कोई भी मेडिकल डिवाइस जिस पर्पस के लिए बनाया गया वो वैसा आउटपुट नहीं दे रही, तो उसकी रिपोर्टिंग, उसके सेफ्टी कंसर्न्स जो हैं वो भी अथॉरिटी के साथ शेयर किया जाता है। जहां तक मेडिकल डिवाइस एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस का ताल्लुक है, तो उसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो मेडिकल डिवाइस से रिलेटेड है या फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है। अगर वो मेडिकल डिवाइस से रिलेटेड है, देन इट कम्स अंडर द मेडिकल डिवाइस रूल्स 2017, और आपको वो तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होंगी जो कि मेडिकल डिवाइसेस रूल्स 2017 कहता है। जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो मेडिकल डिवाइसेस के बिजनेस से लिंक करती है, तो फिर आपने ये चेक करना है कि आइदर यू वुड बी एन इंपोर्टर और यू विल बी एन मैन्युफैक्चरर। अगर आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 1 के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा और आपको कंप्लाइंस करनी पड़ेगी एज पर GMP, गुड स्टोरेज प्रैक्टिसेस एंड गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस की। अगर आप ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपका यहाँ जस्ट बिजनेस है एंड यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी मेडिकल डिवाइसेस हियर इन पाकिस्तान एंड यू जस्ट वांट टू इंपोर्ट योर मेडिकल डिवाइसेस हियर इन पाकिस्तान, देन आपको फॉर्म 2 के ऊपर अप्लाई करना है एंड यू हैव टू इंश्योर दैट द फैसिलिटी कि जहाँ आपने मेडिकल डिवाइसेस को इंपोर्ट करके स्टोर, एग्जिबिट, सेल करना है वो एज पर गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस फॉर मेडिकल डिवाइसेस है या नहीं है। जब आपने अपना स्कोप डिफाइन कर लिया, देन आप जो रिक्विजिट फॉर्म है जैसे कि फॉर्म 1 और फॉर्म 2 है उसके ऊपर अथॉरिटी को अप्लाई करेंगे। जब आप अथॉरिटी को अप्लाई करेंगे तो मेडिकल डिवाइसेस बोर्ड जो एक टीम तश्कील देगा जो कि आके आपकी फैसिलिटी जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न भी हो सकती है या इंपोर्टिंग जो स्टोरेज रिलेटेड फैसिलिटी है उसे इंस्पेक्ट करेगी। जब वो पैनल देखेगा कि आपकी जो फैसिलिटी है वो एज पर रिक्वायरमेंट ऑपरेट कर रही है, तमाम स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही है, then they will submit their observations to the medical devices board, and after the successful inspection you will get your establishment license. If you are a manufacturer, then establishment license will be issued on form 3. If you are an importer, then the establishment license will be issued on फॉर्म 4। जब आपने फॉर्म 4 और फॉर्म 3 ले लिया है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, नाउ यू आर लाइसेंस्ड और ऑथराइज्ड टू डू बिजनेस इन पाकिस्तान। बगैर लाइसेंस के आपकी कोई भी एक्टिविटी जो कि मेडिकल डिवाइसेस की सेक्टर में फॉल करती होगी या जो कि इन कंप्लायंस नहीं होगी मेडिकल डिवाइस रूल्स 2017 के, उसे इलीगल कंसिडर किया जाएगा। क्योंकि इससे पहले क्योंकि रूल्स एप्लीकेबल नहीं थे, इम्प्लीमेंटेड नहीं थे, बट अब रूल्स एप्लीकेबल हैं और इम्प्लीमेंटेड हैं, इन्फोर्स्ड हैं। सो अब कोई भी कंपनी जो मेडिकल डिवाइस का बिजनेस करना चाहती है उसे सबसे पहले मेडिकल डिवाइस का लाइसेंस लेना होगा। जैसे कि मैंने पहले आपसे शेयर किया कि एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस इज द गेटवे, इट्स द फर्स्ट स्टेप। द एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस आपने ले लिया, उसके बाद आपने देखना है अपनी प्रोडक्ट को। आप जो प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं या मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं वो मेडिकल डिवाइस की डेफिनेशन में आती है या नहीं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि मेडिकल डिवाइस रूल्स 2017, ग्लोबल हार्मोनाइजेशन टास्क फोर्स डेफिनेशन एंड WHO डेफिनेशंस, क्योंकि जो मेडिकल डिवाइस रूल्स 2017 है दीज आर एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड इसकी डेफिनेशंस कंप्लीट वही अडॉप्ट की गई हैं जो WHO या ग्लोबल हार्मोनाइजेशन टास्क फोर्स या IMDRF ने डिफाइन की है। इंटरनेशनली जो मेडिकल डिवाइस को डिफाइन किया गया है वैसे ही आपने देखना है कि आपकी प्रोडक्ट मेडिकल डिवाइस की डेफिनेशन में फॉल कर रही है या नहीं। अगर आपकी प्रोडक्ट मेडिकल डिवाइस की कैटेगरी में फॉल करती है देन आपने उसे क्लासिफाई करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेडिकल डिवाइसेस की 4 क्लासिफिकेशन है जो कि रिस्क के ऊपर डिफाइन की गई है, जो क्लास A, B, C और D मेडिकल डिवाइसेस हैं। फिर आपने देखना है कि रिस्क की बेस के ऊपर आपकी मेडिकल डिवाइस किस क्लास में फॉल करती है।
क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है या क्लास डी है। जब आपने अपनी प्रोडक्ट को क्लासिफाई कर लिया, उसके बाद आपको अपनी प्रोडक्ट की ग्रुपिंग करनी है कि आपकी प्रोडक्ट आइदर वो सिंगल है, फैमिली है, सिस्टम है या ग्रुप है या क्लस्टर है। Schedule B gives you complete guidelines about the grouping of the medical devices. Similarly, Schedule F gives you a complete guidelines about the classification of the medical devices. ये तमाम शेड्यूल जो हैं ये मेडिकल डिवाइसेस रूल्स 2017 का पार्ट है। जब आपने अपनी प्रोडक्ट को क्लासिफाई या ग्रुप करना है तो आप मेडिकल डिवाइसेस रूल्स 2017 से गाइडेंस लेंगे, उसके तहत अपनी प्रोडक्ट को क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफाई करने के बाद उसकी ग्रुपिंग करेंगे। जब आपने ग्रुपिंग कर ली तो देन आपने देखना है कि अगर आपने उसको लोकल मैन्युफैक्चर करना है या इंपोर्ट करना है। अगर लोकल मैन्युफैक्चर हो रही है प्रोडक्ट तो आपने उसको फॉर्म 6 और वो क्लास ए में फॉल करती है तो आपने उसे फॉर्म 6 में अप्लाई करना है। अगर वो प्रोडक्ट इंपोर्टेड है और वो क्लास ए में फॉल करती है तो आपने उसे 6A के ऊपर अप्लाई करना है और उसमें तमाम टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स जिसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो अपनी अथॉरिटी को देनी है। इसी तरह जब आप अपनी प्रोडक्ट को क्लासिफाई करेंगे और वो बी, सी या डी कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई हो रही होगी तो आपने उसे फॉर्म 7 यूज करना है अगर वो लोकली प्रोड्यूस हो रही है, और अगर वो प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रही है तो आपने उसे फॉर्म 7A के ऊपर अप्लाई करना है और उसके मुताबिक अपनी कंप्लीट टेक्निकल इंफॉर्मेशन जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशंस आर द क्रेडेंशियल्स ऑफ द कंपनी, ISO सर्टिफिकेट, उसका EC सर्टिफिकेट कि वो जिस कंट्रीज में आ रही है वहाँ रजिस्टर्ड है या नहीं है, और नैंडो लिस्टिंग उसकी। नैंडो स्टैंड्स फॉर न्यू अप्रोच नोटिफाइड एंड डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस, जो यूरोपियन डेटाबेस में है, जो कि ये शो करती है कि कौन सी कंफर्मेटी असेसमेंट बॉडी एज पर यूरोपियन कंप्लायंस एग्जिस्ट कर रही है या नहीं करती। इसके साथ आपने प्रूफ देना है उसकी मैन्युफैक्चरिंग का, उसकी क्वालिटी का, उसकी स्टेबिलिटी स्टडीज का। स्टेबिलिटी स्टडीज के साथ साथ अगर कोई इक्विपमेंट ऐसा है जो कि जिसके ऊपर स्टेबिलिटी स्टडीज एप्लीकेबल नहीं है, उसमें आपने उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग या ऑपरेटिंग आवर्स हैं वो किसी न किसी स्टडी की बेस के ऊपर डिफाइन किए जाते हैं, उसके मुतालिक आपने इंफॉर्मेशन देनी है। और वन ऑफ द क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इज द फ्री सेल सर्टिफिकेट। यू हैव टू प्रोवाइड द प्रूफ दैट कि जो प्रोडक्ट आप पाकिस्तान में इंपोर्ट कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट आप पाकिस्तान में रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं ये रेफरेंस कंट्रीज में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर आपकी प्रोडक्ट जो स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज के अंदर रजिस्टर्ड होगी, जैसे यूएसए के अंदर अगर यूएस FDA से रजिस्टर्ड होगी, TGA से रजिस्टर्ड होगी, हेल्थ कनाडा से रजिस्टर्ड होगी या नैंडो लिस्टेड होगी या EC सर्टिफाइड होगी, तो आपको विदाउट इंस्पेक्शन ऑफ द फॉरेन मैन्युफैक्चरर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट इन कंट्रीज जैसे कि मैंने नाम लिए जो और स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज से अप्रूव नहीं होगी तो जो मेडिकल डिवाइसेस बोर्ड है वो एक इंस्पेक्शन टीम नॉमिनेट करेगा और वो टीम आपकी मैन्युफैक्चरिंग साइट को जाके इंस्पेक्ट करेगी। आप जहां वो मेडिकल डिवाइस प्रोड्यूस की जा रही होगी उसकी इंस्पेक्शन होगी और वो अगर एज पर स्टैंडर्ड होगी और कंप्लाई करेगी विद ऑल द रिक्वायरमेंट्स, देन आपकी प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान में ड्रैब से अप्रूवल मिलेगी। अगर हाँ लोकल कंपनी है, लोकल प्रोडक्शन हो रही है, तो मेडिकल डिवाइसेस की इंस्पेक्शन के बाद फॉर्म 8 के ऊपर उसकी रजिस्ट्रेशन इशू कर दी जाएगी। अगर वो प्रोडक्ट इंपोर्टेड है तो उसके बाद फॉर्म 8A के ऊपर इसकी रजिस्ट्रेशन ग्रांट की जाएगी। एक सिंपलेस्ट is the flow chart of the registration process of the medical devices here in Pakistan. अगर हम ड्रैब की बात करें परफॉर्मेंस की कि आज तक ड्रैब ने जो मेडिकल डिवाइसेस रूल्स 2017 कहलाते हैं और 2018 में नोटिफाई हुए थे, तो आज तक का जो डेटाबेस अवेलेबल है उसके मुताबिक तकरीबन 561 इंपोर्टर्स ऐसे हैं जो ड्रैब ने जिनको लाइसेंसेस इशू किया है
और 54 लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं। ये वो कंपनीज हैं जो या तो मेडिकल डिवाइसेस को लोकली प्रोड्यूस कर रही हैं या ये मेडिकल डिवाइसेस को इंपोर्ट करती हैं पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह अगर हम जो मेडिकल डिवाइसेस की रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 1550 नंबर्स हैं उन मेडिकल डिवाइसेस का जो पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही हैं और यहाँ ड्रैब से रजिस्टर्ड हैं। सिमिलरली 70 नंबर्स हैं उन मेडिकल डिवाइसेस का जो के फॉर्म 8 के मद में इशू हो चुके हैं। जहां तक हम करंट लेजिस्लेशन की बात करें तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्रैब और इन्फोर्समेंट ऑफ द मेडिकल डिवाइसेस रूल्स ये स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जेम्पशन पीरियड्स डिफाइन था, उस एग्जेम्पशन पीरियड्स को एक्सटेंड भी किया गया, बट नाउ एग्जेम्पशन पीरियड करंटली not available and medical devices rules 2017 are applicable और तमाम एक्टिविटीज जो मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर की हैं वो मेडिकल डिवाइसेस रूल्स 2017 के अंदर उसे रेगुलेट किया जा रहा है। करंटली ड्रैप ने कुछ स्ट्रिंजेंट मेजर्स भी लिए हैं टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट, और ये इंश्योर करने के लिए कि पेशेंट जो मेडिकल डिवाइस मार्केट से ले रहा है वो एज पर इंटेंडेड यूज वो परफॉर्मेंस दे रही है और उसकी परफॉर्मेंस जो मैन्युफैक्चरर ने डिफाइन की थी वो उसके मुताबिक काम कर रही, ताकि जो यूजर है उसका अल्टीमेट बेनिफिट ले सके और जो मेडिकल डिवाइस है वो सही तरीके से परफॉर्म कर सके। अभी जिसमें स्ट्रिंजेंट मेजर्स की जैसे मैंने बात की तो करंटली जितनी भी सिरिंजेस थी उनको अब शिफ्ट कर रहा है ड्रैप ऑटो डिस्पोजेबल सिरिंजेस की तरफ। इसी तरह जितनी भी मेडिकल डिवाइसेस थी इससे पहले उनके ऊपर MRP प्रिंट नहीं होती थी, बट एज पर दी अवेलेबल नोटिफिकेशन मेडिकल डिवाइसेस बोर्ड ने ये डिसीजन किया है कि कोई भी मेडिकल डिवाइस जो पाकिस्तान के अंदर मार्केट की जाएगी, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या वो रजिस्टर्ड ना हो, उसके ऊपर MRP का प्रिंट होना जरूरी है। इसी तरह जब आपकी प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हो जाती हैं तो उसकी कुछ लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स हैं। Once you got your establishment license number and your product registration or medical device registration number, then you have to comply with the labeling requirements of the medical device rules 2017। और उन लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपकी मेडिकल डिवाइस के ऊपर मेडिकल डिवाइस का इंपोर्ट लाइसेंस नंबर, मेडिकल डिवाइस का रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका इंटेंडेड यूज, उसकी MRP, उसकी स्टोरेज कंडीशंस, ये तमाम चीज़ें उसके ऊपर प्रिंट होना ज़रूरी है। जब आपकी प्रोडक्ट इन चीज़ों को कंप्लाई करेगी तो आप उसको मार्केट कर सकते हैं। अदरवाइज ड्रैप और मेडिकल डिवाइस एंड मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स डिवीजन इसके ऊपर कोई भी स्ट्रिंजेंट मेजर्स भी ले सकता है। इसी तरीके से अभी जो करंट इन्फोर्समेंट है उसमें ड्रैप ने अपना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को भी ग्रो किया है एंड दे आर स्पीडली जितनी भी एप्लीकेशंस हैं जो कि मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड हैं उनका डिसीजंस कर रही हैं। मेडिकल डिवाइसेस बोर्ड जो कि अथॉरिटी है फॉर द डिसीजंस ऑफ टेकिंग एक्शंस ऑन मेडिकल डिवाइसेस रिलेटेड मैटर्स, दे आर परफॉर्मिंग and they are doing their job well. I am hopeful that with this presentation you will learn a lot. If you need any clarification, you can contact me. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Mr. Suhail, for giving us such a delightful treat by the help of your lecture. And we will again invite you as a speaker in another program. And thank you so much. Thank you once again. And thank you so much, every participant, for giving us your precious time. And again, thank you, Mr. Suhail, for giving us your time. And due to some personal reasons, Mr. Kamran Atif not join us, so I will be end this session. And again, thank you, everyone. And now I would like to close this session. Thank you, everyone. Thank you. Thank you so much.